विश्व के नेता, भारत के पंत प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के नेतागण और विजयपुर जिले और बागलकोट जिला का भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी, श्रद्धेय भाइयों बहनों और भारत के भविष्य के युवाओं, सबको हृदय अंतरा से सादर प्रणाम। हमारा सनातन धर्म जन्म देने वाली माँ और हमारा भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा जन्म दिए हुए माता और भारत माता को कोई भी अपशब्द कहे, हम कतई बख्शा नहीं जाएगा। हम खुद ही देंगे, प्राण भी देंगे, भारत माता का अपमान नहीं सहेंगे। उसके साथ हमारा विश्व का नेता, भारत माता की सुपुत्र परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी अपशब्द कहे, हम भारतवासियों कतई नहीं सहेंगे। होश में आओ विपक्ष नेताओं, तुम्हारा गंदी जुबान से गंदा शब्द से बोकलाया तो हम उसी भाषा में जवाब देंगे। मोदी अंदरे देश, श्री नरेंद्र मोदी अंदरे विश्वास, श्री नरेंद्र मोदी अंदरे रक्षणे, श्री नरेंद्र मोदी अंदरे ಹಿಂದುತ್ವ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸಪ್ನ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ತೇಜ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಭಾರತ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಭಾರತ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನ್ವಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತಾ ಇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶ್ವದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಗೆಳತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಂದಿರಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಮೆಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಂತೆ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಖಂಡ ಭಾರತವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಆಗಿ ಭಾರತ ಕಂಗೊಳಿಸೋದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ 370 ವಿಧಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್, ಇವತ್ತು ಮಹಾಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, 220 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,
80 ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ರೇಷನ್, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ, ಜನಧನ್, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ಸಿಎಎ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ 9 ವರ್ಷದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾರಂಟಿ ಮುಗಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ಉಚಿತ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದಿವಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಿವಾಳಾದಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 130 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप और आपके और हमारा प्रयास से हम चुनाव में विकास के ऊपर हमने अभी वोट मांग रहे हैं. 5 वर्ष में बीजापुर को, नगर को दूल्हापुर कहता था, अभी बीजापुर को विजयपुर बोल के हमारा स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया. हमने बीजापुर शहर में 3 रास्ता को मार्ग को स्वतंत्र सेनानी महाराष्ट्र के पुरुष के नाम से हमने नाम लिखा है. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगत ज्योति बसवेश्वर, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, स्वातंत्र्य वीर सावरकर मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, छत्रपति शिवाजी मार्ग, बाबू जगजीवन राम मार्ग, राजमाता अहिल्याबाई होलकर मार्ग, वीर महाराणा प्रताप मार्ग, डॉक्टर एपीजे कलाम मार्ग, ऐसा 30 रोडों का और मूर्ति भी हम बीजापुर में बनाया है. सिर्फ आपका विश्व के नेता, भारत के पंत प्रधानमंत्री जी हमने ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 8 ವಿಧಾನಸಭೆ, ಜಮಖಂಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ 7 ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 15 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेक्सटाइल के नाम से काम किया हूँ. आपके आशीर्वाद से इस बार बीजापुर शहर से मैं प्रत्याशी हूँ. आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे. धन्यवाद. बोलो भारत माता की. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಗರ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಅಭಿವಂದನಾ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. भारत माता की, भारत माता की. पंच नदिಗಳ ನಾಡು ವಿಜಯಪುರದ ಇಲ್ಲ. ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. थोड़ी देर पहले मैं जगज्योति बसवेश्वरा की कर्मभूमि में था.
उनकी जन्मभूमि में उपस्थित हूं। मैं श्री शिवगिरी मंदिर, श्री तोखी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, श्री यालागुर हनुमान मंदिर को सर झुका के प्रणाम करता हूं। विजयपुरा की ये धरती संत जनों की धरती है। उनके द्वारा चलाए जा रहे मठ हमेशा सुशासन का मार्ग दिखाते हैं। मुझे याद है कि 2014 में उगादी के अवसर पर मैं आप सबके बीच आया था। तब मैंने आप सबके भीतर नववर्ष के साथ साथ नए भारत के निर्माण का उत्साह भी देखा था। जब मैं 2018 में विजयपुरा आया था तो मुझ पर आशीर्वाद बरसाने के लिए जन सैलाब उमड़ आया था और आज आपने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इतनी देर से आप यहां डटे हैं, इतनी बड़ी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। साथियों, भगवान बसवेश्वरा ने हमें कायका यानी कर्म न करने का और दासोहा यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुशासन के इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। भगवान बसवन्ना की सिखाई जो भी बातें हैं वो बातें मूलतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसकी प्रेरणा है, उसका आधार है। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा, कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, दिव्यांग ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी। भाजपा सरकार में आज समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है। कर्नाटका के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिलना तय हुआ है। इनमें से अधिकतर दलित, वंचित, पिछड़े समाज के परिवार हैं। कुछ महीने पहले ही मैं कलबुर्गी आया था। वहां मुझे कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों को नया जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन हजारों परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए हैं। अपनी बंजारा माताओं बहनों को वो हक्कू पत्र देते हुए मैं एक आत्मविश्वास उनमें साफ साफ देख रहा था। ये आत्मविश्वास इस बात का था कि अब उनके बच्चों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उन्हें
वंचितों का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसकी बात बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है। वरना आप सभी साक्षी है कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा, लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। साथियों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नाम पर कई योजनाएं शुरू की, लेकिन लाभ बिचौलियों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। असली लाभार्थी तक तो उसका हक पहुंचा ही नहीं था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया था कि ये कांग्रेस ने प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। मतलब 85%, 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने खुद की सरकार के लिए स्वीकार किया था। उस समय पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था, लेकिन कांग्रेस ने इस लूट को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने गरीबों के दुख दर्द की परवाह नहीं की। अगर हम आज के हालत से तुलना करके देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबों का कितना पैसा वे लोग लूट लेते थे। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 29 लाख 29 लाख करोड़ ये रुपये इस देश के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। अब सही लाभार्थियों तक उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे लाभार्थी के खाते में जमा होते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता था, 15 पैसा पहुंचता था। 85% गायब हो जाता था। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो गरीबों के हक का 85% पैसा गायब नहीं हो जाता। 29 लाख करोड़ रुपयों में
अगर कांग्रेस की सरकार होती, हमने 29 लाख करोड़ भेजा, लोगों के खाते में गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ कांग्रेस की अपनी जेब में चले जाते। ये उनके प्रधानमंत्री का मैं हिसाब दे रहा हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार जो भी काम करती है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करती है। तभी तो इतने महीनों से कर्नाटका के लाखों परिवारों को राशन मिल रहा है। पूरा 100% राशन मिल रहा है। वरना पहले की तरह कांग्रेस इसमें से भी 85% राशन डकार जाती। कांग्रेस की सरकारें पहले किसानों के नाम पर योजनाएं चलाती थी, कर्ज माफी की घोषणाएं करती थी, लेकिन असली किसान को, छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता था। सरकार का पैसा बिचौलियों की जेब में चला जाता था। जबकि भाजपा अपने कार्यों में पारदर्शिता को, गरीब कल्याण को सबसे आगे रखती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि चलाई। आज पूरा का पूरा पैसा समय पर लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। पूरे देश में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। विजयपुरा के ही लगभग 3 लाख किसानों के बैंक खाते में लगभग 600 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कांग्रेस की सरकार होती तो ये पैसा कभी भी आप तक नहीं पहुंचता। साथियों, किसानों की तकलीफ कभी कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, जबकि भाजपा सरकार बीज से लेकर के बाजार तक किसानों की हर सुविधा और हर असुविधा उस पर बारीक नजर रखती है, ध्यान रख रही है। यहां तूर दाल के किसानों को नुकसान हुआ तो बीजेपी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों को मुआवजा दिया। अंगूर और नींबू किसानों के लिए जो बोर्ड गठित किए गए हैं उनसे भी बहुत सुविधा किसानों को हो रही है। और ये क्षेत्र तो ज्वार के लिए जाना जाता है। भांति भांति के मोटे अनाज यहां हमारे छोटे किसान उगाते हैं। पहली बार ज्वार जैसे हमारे सभी श्री अन्न को बीजेपी सरकार देश विदेश में एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को होने वाला है। साथियों, ये 5 नदियों का क्षेत्र है। इसके बावजूद यहां सिंचाई के लिए पहले उतने प्रयास नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार है जिसने यहां अनेक सिंचाई प्रोजेक्ट पर काम किया है। बीजेपी सरकार ने कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट और अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान किया है। नारायणपुरा लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से भी विजयपुरा के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। मुलवाड़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी हमने पूरा किया
और रेवना सिद्धेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सिंचाई के ऐसे काम से किसानों के प्रति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। सिंचाई ही नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए भी डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। जल जीवन मिशन से पहले कर्नाटका के लाखों परिवारों की बहनों को बाहर से पानी भरना पड़ता था। सिर्फ 3.5 वर्षों के भीतर ही विजयपुरा जिले के करीब 3 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा मिली है। इससे हमारी माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हो गया है। साथियों, कर्नाटका की माताओं बहनों बेटियों ने कांग्रेस सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफें झेली है। कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की कभी चिंता ही नहीं की। पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। इससे गरीब से गरीब परिवार को भी मुफ्त इलाज मिलने लगा। इससे माताओं बहनों को बीमारी का इलाज ना कराने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। भाई और बहनों, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज हमारी माताओं बहनों को नई शक्ति मिली है। पहले हमारे यहां घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की बहुत अधिक पूछ नहीं होती थी। भाजपा सरकार ने जब महिलाओं के करोड़ों जनधन बैंक अकाउंट खोले तो महिलाओं का जीवन बदलने लगा। आज इन बैंक अकाउंट में सरकारी मदद सीधी आ रही है। इससे घर के महत्वपूर्ण फैसलों में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ गई। उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के भी गंभीर प्रयास नहीं किए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने मुद्रा योजना बनाकर लाखों करोड़ रुपए बहनों को दिए हैं। इससे भी बहनों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी बीजेपी सरकार ने मजबूत किया है। इसलिए तो आज कर्नाटक की माताएं बहनें भी कह रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। भाई और बहनों, विजयपुरा सहित पूरे क्षेत्र में हमारी समृद्ध धरोहरों से भरा है। मैंने विकसित भारत के लिए जिन पंच प्राणों का आह्वान किया है उनमें एक है विरासत पर गर्व करना। डबल इंजन सरकार देश की विरासत को संरक्षित भी कर रही है और इससे रोजगार के अवसर भी बना रही है। आज आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस क्षेत्र में बहुत बल दिया जा रहा है। विजयपुरा एयरपोर्ट पर काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इससे इस क्षेत्र में सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा हो जाएगी। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और बिजलीकरण से भी यहां के लोगों को लाभ होगा। विजयपुरा सोलापुर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर भी
बहुत तेजी से काम हो रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी से टूरिज्म तो बढ़ता ही है, किसानों को भी सुविधा होती है और उद्योगों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इससे विजयपुरा में नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर को ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लोकल के लिए वोकल है, इसलिए अपने बुनकरों, अपने हस्तशिल्पियों को निरंतर प्रोत्साहित करती है। कर्नाटका में नेकार सम्मान योजना की बहुत चर्चा है। केंद्र सरकार ने भी ऐसे साथियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इससे इस पारंपरिक विधा से जुड़े परिवारों का जीवन आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार आकांक्षाओं को बल देने वाली सरकार है, सपनों को साकार करने वाली सरकार है। डबल इंजन सरकार युवाओं की सरकार है, इसलिए हमने इस बार अनेक नए साथियों को चुनाव में उतारा है। कर्नाटका का ये चुनाव आने वाले 25 साल में विकसित कर्नाटका के निर्माण का है। बीजेपी के पास इसका रोड मैप है, कांग्रेस के पास ना तो रोड मैप है और ना ही वो जोश है। कांग्रेस के नेता तो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे मौका दे दो। क्या दुर्दशा आई है। मैं जानता हूं कर्नाटका की जनता थकी हारी कांग्रेस को नहीं, जोश से भरी बीजेपी की टीम को अवश्य चुनने वाली है। इसलिए कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, युवा हो या महिला, दलित हो या आदिवासी, एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। भाई और बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद और अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। 10 मई को मतदान होने वाला है। अब आज इतनी बड़ी जबरदस्त सभा की आपने, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मंडप के बाहर मंडप से भी ज्यादा लोग हैं। अब मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब सभा बहुत बड़ी हो गई, मोदी जी भी आ गए, भाषण भी अच्छा हो गया, उत्साह भी जोरदार था, बस अब 10 तारीख को जाके वोट दे देंगे, अब कोई काम नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे ना? जाकर के सो नहीं जाओगे ना? घर जाके काम करोगे ना? जरा हाथ ऊपर के बताइए, जाओगे ना? पोलिंग बूथ में जाओगे? हर घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मिलोगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे आप लोग? ऐसे नहीं भाई, इनका तो करोगे, लेकिन मेरा काम करोगे क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या? पक्का करोगे?
गलती नहीं करोगे ना? देखिए, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरा काम है, आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपने बुलाया, मैं आ गया, तो मेरे लिए करोगे ना काम? देखिए, एक छोटा काम है मेरा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जब यहां से जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो यहां आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत से लोग हैं जिनका मैं दर्शन करना चाहता था, नहीं कर पाया। आप मेरा एक काम जरूर करना, हर घर में जाना, हर किसी को नमस्कार करना और कहना, मोदी जी आपके सेवक दिल्ली से विजयपुरा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। क्या इनको इतना कह देंगे? उनको कहिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने आपका आशीर्वाद मांगा है। बताएंगे, घर घर जाकर के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।